Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease in which the body believes the linings of the joints are foreign tissue and it attacks and damages them, causing joint pain and damage throughout your body. It affects more than 180 million people in India. The prevalence is higher than many well known diseases such as diabetes, AIDS, and cancer. At MediCircle, we present to you Rheumatoid Arthritis Awareness Series, where we are featuring eminent rheumatology specialists and doctor treating RA to help raise awareness for all of the people who are suffering daily with pain. And there are so many misconceptions also about this chronic disease, which we would like to clarify from our guest today. So, hi, I'm Smita Kumar and welcome to MediCircle. Today, our guest for the talk is Dr. Rohit Chakor. Dr. Rohit is a consultant orthopedic surgeon working with the Bone and Joint Clinic Pune. He's an experienced orthopedic surgeon with a demonstrated history of working with many eminent organizations in the healthcare industry. Dr. Rohit is skilled in clinical research, medical education, pediatrics, and medicine. Hello, Dr. Rohit. Welcome to MediCircle. Yeah, good evening. Hello. I hope you're doing well today. Yes, very much. So glad to have you here. Yeah, same here. So to begin with, Dr. Rohit, what are the signs and symptoms of rheumatoid arthritis and when to visit a doctor in case one identifies any symptom? Okay. Rheumatoid arthritis is a fairly common autoimmune disease seen in our day-to-day practice. Rheumatoid arthritis, which is also commonly called as Sandivat or maybe Guttria. This is a disease which is autoimmune disease which affects your own body cells by your own immune system. So this is a fairly characteristic disease. इसमें ऐसा होता है कि if a person is getting swelling over small joints मतलब जो जोड़ अपने हाथों के और पैरों के है, like your fingers, like your wrist, like your toes. So these all joints would become swollen and characteristic of this swelling is early morning stiffness. तो सुबह जब आप उठते हो तो ये जो जोड़े हैं जॉइंट्स है ये सूज जाएंगे और ये आपको दर्द करेंगे. When there's a change in your weather, such as अगर ठंड में आप ज्यादा रहोगे तो symptoms become aggravated and all these symptoms are seen at an early age. So it is very rare to have these symptoms seen after age of 50 or maybe 60. तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि संधिवात और osteoarthritis is a disease for the elderly people, which is because of wear and tear of the joints. But this is a disease for an young population or an young adult population. तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं. जब भी आपको सुबह उठने में सूजन महसूस हो हाथों पैरों के जोड़ों में, जब भी आपको ये सूजन वेदर चेंज होने पर ज्यादा महसूस हो, इसके अलावा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, इसमें स्किन में भी नोड्यूल्स आ सकते हैं, आंखों में भी तकलीफ हो सकती है, कोई दूसरे ऑर्गन्स, बिकॉज दिस इज अ सिस्टमिक डिसीज, तो और ऑर्गन्स भी उसमें अफेक्ट होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसका अफेक्शन जो होगा वो हैंड में होगा. तो इसमें रूमेटॉइड हैंड करके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे. काफी बार ये चीजें इग्नोर होती है इंडियन पॉपुलेशन में. 3% ऑफ वीमेन आर अफेक्टेड इन दिस. So instead of visiting a doctor, they wait for the disease to be controlled on their own, and that results in some deformities in your hands and wrists. तो जब वो डिफॉर्मिटी कंट्रोल के बाहर होती है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है. So it is always better that early detection. So best sign is to detect the morning stiffness as well as swelling over the joints. एक बार आप विजिट करोगे, अगर वो संधिवात के सिम्टम्स से आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो हम कुछ ब्लड टेस्ट आपको बताते हैं. ब्लड टेस्ट आर टू सी हाउ मच इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन एंड वेदर यू हैव अ सीरो पॉजिटिविटी इन द आर्थराइटिस. सीरो पॉजिटिविटी इज रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव अगर आपके ब्लड में आया है, इसका मतलब आपको संधिवात है, गठरिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और इसकी ट्रीटमेंट हम स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में करेंगे. तो ये सब चीजें अगर आप में दिख रहे हैं, आपको संधिवात है, रिपोर्ट में भी कंफर्म हो गया है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य है. बिना ट्रीटमेंट के ये डिसीज को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. आपको दवाई से ही ये डिसीज कम करने का आज हमें बहुत अच्छी दवाइयां उसके लिए अवेलेबल है, जिससे ये डिसीज कंट्रोल में आता है. जी बिल्कुल.
तो डॉक्टर रोहित, Yes, आपने अपने इस मेडिकल कैरियर में कितने यंग पेशेंट्स को देखा होगा, बिकॉज आप कितने सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, तो correct, कितने यंग correct. पेशेंट्स को भी आपने देखा होगा आपके पास इस परेशानी को लेकर आते हुए? As young as 30 to 14 years of old, हाँ, boys I've seen. उसको बोलते हैं, it has a term called as juvenile rheumatoid arthritis. इसका मतलब कि यंग एज में आपको रूमेटॉइड के सिम्टम्स होते हैं, यंग एज में आपका सीरो पॉजिटिविटी है वो हाई होता है, रूमेटॉइड फैक्टर आपके बॉडी में होता है, इसके वजह से आपको जल्दी से जॉइंट में प्रॉब्लम शुरू होते हैं. आर्थराइटिस जो जॉइंट में होता है वो अर्ली एज से होता है. इट इज वेरी imperative to get these people diagnosed early and get the treatment started, otherwise they would result in early arthritis and then joint problems in early adult life. तो मैंने जो पेशेंट जो अर्लीस्ट हमने जो देखा है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते वक्त जो इनको हाथों में राइटिंग के वक्त दर्द होता है या दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, उनको बाकी भी जोड़ों में तकलीफ शुरू होती है. दीज आर द क्लासिक पेशेंट्स. यंग एडल्ट और एडोलेसेंट चिल्ड्रन में ऐसे सिम्टम्स बहुत रेयर हैं, तो ये बहुत इजीली डायग्नोस होने वाली है अनलेस वी आर नॉट इग्नोरिंग देम. तो अगर कोई बच्चा आपको ये कंप्लेंट करता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है या मेरे पैरों में सूजन आ रही है, हाथों में सूजन आ रही है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड गिव अटेंशन, और उसको जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसका हमको डायग्नोसिस करना इजी रहेगा. डॉक्टर रोहित, ओके. एक अगला सवाल एक मिथ से रिलेटेड है, बिकॉज देयर इज अ मिथ स्टेटिंग दैट हम्म. देयर इजंट एनी ट्रीटमेंट फॉर आरए, सो पीपल जस्ट हैव टू लिव विद इट. सो हाउ ट्रू इज इट, और कैन इट बी क्योर्ड? बिकॉज बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आरए जो है वो लाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है. तो आपके अनुसार क्या ये सही है, और इसकी किस तरह से इसकी रोकथाम या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? एक्चुअली जब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मिथ था, जैसे बहुत सालों पहले इसका ट्रीटमेंट किसी को पता नहीं था कि क्या होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारा मेडिकल फील्ड एडवांस हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे दवाइयाँ अभी आ चुकी है. So any medicine which can help you in decreasing the immune response is helpful for the treatment of rheumatoid arthritis. तो ये जो पहले के जमाने में ऐसे होता था कि पेशेंट को रूमेटॉइड अटैक आया है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्यूट फेज में है, तो उसको सिर्फ बोलते थे कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, कोल्ड कंप्रेसेस करिए, मसाज करिए और लेग एलिवेशन करिए ताकि सूजन चली जाए. इसके अलावा उसमें ट्रीटमेंट नहीं था. लेकिन आज हमारे पास वी हैव अ बैटरी ऑफ मेडिसिन विच कैन हेल्प पेशेंट्स टू गेट बेटर नॉर्मल लाइफ, जो हमारा एम है. वी कैन नॉट जस्ट ट्राई टू गेट आउट द इम्यूनिटी आउट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि इम्यूनिटी आपको आपके खिलाफ यूज हो रही है. इसके लिए इम्यूनिटी को सप्रेशन हमको देना बहुत जरूरी है. तो नाउडेज वी हैव बीन हियरिंग अबाउट HCQS which is hydroxychloroquine, which was also used for some patients having the coronavirus infection. तो उस जो HCQS है, it acts as same in rheumatoid patient. This was a very cheap drug available for malaria before, but it also helps in immunomodulation for the other autoimmune diseases. Same thing with the viral infections. ये बहुत सक्सेसफुल ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो इसका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग. तो काफी सालों पहले सिर्फ स्टेरॉइड एक ही ऑप्शन होते थे, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होने के कारण हमें जो चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आता था. लेकिन अभी हमारे पास रिसेंट एडवांसेस में काफी सारे मेडिसिन है जिससे ये पहले डिटेक्ट भी होता है, पहले ट्रीट भी होता है और ये अंडर कंट्रोल रहता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं आर्थराइटिस एंड जॉइंट डिफॉर्मिटीज वो अभी इन सालों में थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं. तो कॉम्प्लिकेशन हम कंट्रोल कर पा रहे हैं. जो डिसीज है that would not go completely. It is like wearing a specs. If you have myopia, if you have hypermetropia, मतलब आपको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, आप चश्मा पहनोगे तो आपको दिखेगा, आप चश्मा निकालोगे तो नहीं दिखेगा. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ. इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये आप पे बोझ आया है, लेकिन ये आपको हम आपका डिसीज कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ बहुत जरूरी है. ये आप अपने आप खुद से ये दवाई बंद नहीं कर सकते. ठीक है. तो डॉक्टर रोहित, जैसे आपने दवाइयों के बारे में बताया कि काफी सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं जो आप अगेंस्ट दिस ट्रीटमेंट या इस बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं. खान पान का इस बीमारी पे कितना असर है, मतलब जो डाइटरी चेंजेस होते हैं, हाउ दे कैन हेल्प इन ईजिंग आउट द इफेक्ट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उससे कितना फायदा होगा खान पान में बदलाव लाते हैं? Yes. First of all, rheumatoid arthritis is not related to your diet. This is an autoimmune disease.
तो लेकिन जो डाइट आप कंट्रोल कर सकते हो जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स कम हो सकता है, जो फ्लेयर अप होता है, जो सिम्टम्स आपको ज्यादा दिखते हैं, दैट यू कैन प्रिवेंट बाय इंप्रूविंग योर इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसमें आपको जो फैटी फिश है, दोज फूड विच इंक्लूड फैट या फ्रूट्स हो सकते हैं जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिस वजह से आपको जो जॉइंट में इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लोमेशन, वो इन्फ्लोमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है। वी कैन ऑल्सो ईट होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट हो गया, किनोआ हो गया, ओट्स हो गया। These all things are helping in reducing the immune response and improving your general well-being. But this is not affecting your disease per se, but this is just a supplementary thing. जैसे ट्रीटमेंट आपको लेना ही है, जी आपको चश्मा है लेकिन आपको कैरेट खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा ही है, इसका मतलब कैरेट खाने से आपका चश्मा जाएगा ये नहीं है। ट्रीटमेंट वुड बी देयर, but this is something accessory which would help you. So one more thing in that is monosaturated fats. So fat food also are not allowed to be eaten for people who have cholesterol. But in these people, अगर फैट हम खा रहे हैं मोनोसैचुरेटेड फैट, उससे वो हार्ट प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है, एंड दीज ऑल्सो इंक्रीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उसके वजह से जो है यू डोंट गेट दैट मच ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर जॉइंट विथ रूमेटॉइड रिस्पॉन्स। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रोलॉन्ग जॉइंट प्रिजर्वेशन इन चीजों से होता है। सेम थिंग विथ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप नॉर्मल खाना ऑलिव ऑयल पे बनाओगे, इट हैज नॉट बीन प्रूवन कितना उसका होता है, बट ऑलिव ऑयल ऑल्सो रिड्यूसेस टू अवॉइड सम प्रॉब्लम विद द जॉइंट पेन। तो इसीलिए वो आप खाना खा सकते हो, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर जनरल वेलबींग। Okay. So mostly if you are having a diet which is balanced diet, it includes all these things, then आपका immune response would be suppressed, and that would help you to reduce the inflammation, but not rheumatoid arthritis. Definitely. एक आखिरी सवाल कि ये जो बीमारी है बिल्कुल ही अनकॉमन नहीं है, दैट इज 1% Yes, ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज गेटिंग अफेक्टेड, सो इट इज नॉट एट ऑल एन correct. अनकॉमन डिजीज। सो डू यू Yes. थिंक अर्ली डिटेक्शन कैन लोअर द काउंट? आपके हिसाब से क्या अगर पेशेंट्स अर्ली सिम्टम्स पहचान करके, या अगर उन्हें जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है या सूजन महसूस हो रही है और उसी उसी वक्त वो डॉक्टर के पास अप्रोच करे रादर वेट करने के बाद काफी दिनों तक कि वो अपने आप ठीक हो जाए, क्या अगर ये अप्रोच रहेगा पेशेंट्स का तो आपको क्या लगता है ये जो पेशेंट्स के काउंट जिस तरह से बढ़ रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, वो घट सकते हैं? Actually, if you are having early detection and patients are coming early in the disease, counts तो बढ़ेगा because you would see more number of patients यस। instead of 1%. It might be 2% or 3%, but जो complications होते हैं patient में, वो complications के percentage कम होंगे. Out of 1% of patients who have rheumatoid arthritis, 90% of these patients would have some deformities in their hands and foot. और आपके हाथ में अगर डिफॉर्मिटी है तो आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे, ग्लास उठाना या कोई काम करना, जो भी आपकी रेगुलर डे टू डे वेलबींग के लिए जो चाहिए वो एक्टिविटीज आपके हैम्पर हो रहे हैं। इफ यू आर कमिंग अर्ली इन द डिसीज एंड यू आर गेटिंग टेस्टेड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और उसके बाद आपको ये ट्रीटमेंट चालू हो रहा है, सो यू हैव गुड कंट्रोल ऑफ योर इन्फ्लेमेशन, गुड कंट्रोल ऑफ योर इम्यून रिस्पॉन्स। आप रेगुलरली एक्सरे चेकअप करके आपके जॉइंट्स भी देख सकते हो, so that would give you a general well-being. Quality of life of patients would improve. Numbers may increase, but the quality of life could be better as compared to what they have today. So we usually do what do you say, titrate the doses of medicines. अगर हर 3 महीने में हम टेस्ट करते हैं और उसमें दिखता है कि रूमेटॉइड फैक्टर्स लेवल ऊपर नीचे हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप ऑल द मेडिसिन ऑल टुगेदर, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि हम मेडिसिन का डोज मिनिमम रखें। जैसे समर सीजन आ गया, एट दैट टाइम आपका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम होता है, इन दैट केस आपको इतना डोसेज की जरूरत नहीं होती, वो डोसेज हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हमको हर 3 महीने में फॉलोअप रख के वो टेस्ट कराने पड़ते हैं, टेस्ट से हमें वो लेवल समझ में आते हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस व्हाट यू कॉल द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उसको हमेशा से आप फॉलो करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आपका जनरल वेलबींग देखोगे, आपको ज्यादा जॉइंट्स पे प्रेशर ना है, ऐसी चीजें करोगे, तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम आपको लाइफ टाइम रहेगा। ऑल दीज थिंग्स वुड हेल्प यू इन अ longevity of your joints as well as better quality of life. तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Sure. So thank you so Yeah. much, Dr. Roy, for coming to MediCircle and sharing this important and relevant information about rheumatoid arthritis with our viewers today. I definitely hope that the audiences who might be listening to this video would be having a better understanding of the disease, the symptoms and the treatment. बहुत सारे patients जो भी या लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर उन्हें इस तरह के symptoms का सामना करना पड़ रहा है तो काइंडली आप वेट न करें और जल्द से जल्द अपने रेमेटॉइड आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट या किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर को दिखाएं और अपने से उस बीमारी के ठीक होने के बिल्कुल वेट ना करें बिकॉज एज डॉक्टर ने समझाया डॉक्टर रोहित ने दैट अर्ली डिटेक्शन हेल्प्स द केसेस टू बी नॉट टू बी कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पे डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं जब आप खुद से काम नहीं कर पाते. So let's not wait for the bad to happen, and let's take early steps, early calls, and prevent this disease right at the beginning. So thank you once again, Dr. Rohit, for giving your time. I mean, we from us from MediCircle team wish you all the best. Thank you so much. Yeah, it was nice talking with you, interacting with you. Sure. Thanks. Take care. Yeah, bye. Yeah.